नासिक का जो कुंभ होता है उसकी क्या लेगेसी रही है एंड व्हाट वाज योर की लर्निंग्स फ्रॉम दैट टाइम? नासिक कुंभ मेला 2015 में हुआ था। आने वाला कुंभ मेला 2027 में है और मेरा पोस्टिंग 2015 फरवरी में जस्ट बिफोर कुंभ मेला। 2015 was a very successful Kumbh Mela. I'm not saying these are the report, because the Kumbh Mela happened without a single incident. You have spent time as the Development Commissioner Industries. अभी आप CEO हैं of MIDC. What have been some of the historical milestones and why is this so कि महाराष्ट्र इतना ज़्यादा important center है for GDP growth of India? So MIDC was established in 1962 and since then MIDC is creating an ecosystem for industrial growth. Today we have 300 plus industrial township in Maharashtra. This industrial township is spread over the land of almost 250,000 acre in Maharashtra, which is I think largest in the country. You see the समृद्धि कॉरिडोर जी 700 किलोमीटर का नागपुर से बॉम्बे को कनेक्टिविटी जब ये बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसके प्लान पे और इसके बनने पे प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन आज आप ये देख सकते हैं कि ये आज पूरे महाराष्ट्र की लाइफलाइन बन गया है। आप देखिए अटल सेतु, कोस्टल रोड जी, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है आने वाले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेस बनेगी। आप इस बात को ध्यान रखें। तो हम गांव-गांव में हर घर से एक एंटरप्रेन्योर तैयार हो, इस अप्रोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था। पिछले लगभग 4 से 5 सालों में हमने अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 80,000 एंटरप्रेन्योर्स के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। उसमें से कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ इन प्रोग्रेस हैं और कुछ आने वाले समय में। 50% of the total country data center capacity is in Mumbai. But in next 5 years, we are multiplying this capacity by 5x. By 2030, we will be having approximately 5 gigawatt data center capacity in Mumbai. And this is not just discussion, this is not just MOU. This is actually happening in Mumbai. Today with us we have Shri Deependra Singh Khushwaha, a 2006 batch IAS officer from the Maharashtra cadre. He is currently serving as the CEO of the Maharashtra Industrial Development Corporation. In this episode of Sushasan, we will be discussing about the industrialization growth story of the state of Maharashtra and how the investments are being attracted and facilitated within the state. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome Deependra ji to this episode of Sushasan. It's a pleasure having you with us today. इस एपिसोड में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करेंगे फॉर विच द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ वेल नोन. We're going to talk about the industrialization story of the state. We're going to talk about investment attraction and investment facilitation कैसे करता है state and innovation जो बहुत ज़्यादा आजकल एंड स्पेशली डीप टेक इनोवेशन की जिसकी चर्चा होती है उसको कैसे प्रमोट कर रहा है महाराष्ट्र, इसके पे भी डिस्कस करेंगे. And through that journey, we'll also focus on a few anecdotes from your life as a civil servant in the state of Maharashtra, and understand some of the key learnings through that journey. So before we start, can we know what was the key motivation for you to join the civil services? Thank you so much for giving us this opportunity to discuss the journey and ecosystem of industry and the good governance initiative within the Maharashtra. मैं अगर स्टार्ट करूँ मेरी सर्विस के मोटिवेशन फैक्टर से, सो देर आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से आज मैं सर्विस में हूँ. बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है द इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टर जी, विच हैज़ प्लेड ए वेरी की रोल इन आई एम बिकमिंग एन IAS ऑफिसर. तो जब से हम छोटे से तब से हमने कलेक्टर्स के इंस्टीट्यूशन के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन्होंने जो चेंज लाया है सोसाइटी में उसके बारे में हमेशा से सुना है. द काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई रोल दे प्ले इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोहिबिटरी एक्टिविटी, एवरीवेयर दे आर देयर. सो दैट वाज द मेन मोटिवेशन फैक्टर. तो सर जर्नी कब स्टार्ट हुई थी इन योर एकेडमिक? वाज इट चाइल्डहुड से, वाज इट कॉलेज लाइफ, कब स्टार्ट किया था? इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. आई वुड से देयर वर लॉट मैनी अप्स एंड डाउन्स, बट आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन. ओके.
I did my post graduation from Jivaji University. I am master in public administration. Right. And after that, I went to for preparation with my friend. अच्छा, ओके सर. सो सर साथ में क्योंकि ये फ्रेंड्स आप बता रहे हैं तो आई थिंक एक ग्रुप मिल गया था एंड दैट्स व्हाई यू नो इजी जर्नी हो गई थी वो आपके Yeah, लिए भी. we started with two. अच्छा. Then slowly फिर हमारा ग्रुप बड़ा होता गया and most of them जी. got selected also. सर जैसे आपने बताया कि कलेक्टर के आपने रोल्स देखे, आपने यू नो उस समय जब आप यंगर उसमें थे अपने एकेडमिक लाइफ में, तो आपने देखे होंगे कि इस टाइप के कलेक्टर काम करता है. व्हेन यू बिकेम योरसेल्फ अ कलेक्टर एंड यू हैव स्पेंट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में दैट रोल, how has you know those early inspirations inspired you to kind of you know success in those districts, and what were your key takeaways from the early stages? As I mentioned, the district collector as an institution was the main key factor. जी. I've seen many collectors, heard many stories about many collectors in my home state and my hometown. After the selection, when I became collector in 2011, Right. when I became collector of Sangli district in Maharashtra. Right. It was a very badly drought affected that time. So ऐसे immediately तो याद नहीं आता है कि मैं कलेक्टर का इंस्टीट्यूशन था उसकी वजह से आज मैं कलेक्टर बना हूँ तो आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बट स्लोली आई रियलाइज कि दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन पीपल लुक आफ्टर. Yeah. तो इस इंस्टीट्यूशन ने आज तक जो किया है उसकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट. क्योंकि मतलब हम बचपन में बहुत छोटी स्टोरी सुनते थे कि बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जिसके पास किसी के पास नहीं हो उसको आप कलेक्टर के पास ले जाओ. जी. जी. सबका सॉल्यूशन उसके पास भी नहीं होता है, बट बहुत ऐसे उम्मीद से देखते हैं उस इंस्टीट्यूशन Right. को. तो उस इंस्टीट्यूशन को और मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये विचार हमेशा मैंने मन में रखा और उस हिसाब से काम किया. राइट. सर ऐसे क्या एस्पेक्ट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ से एनी एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज जो कलेक्टर बाद में आके बनेंगे, उनको क्या दिमाग में रखना चाहिए कि किस मोटिवेशन से, किस आउटलुक की तरह से वो बेस्ट ढंग से कलेक्टर की तरह सर्व कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि आप सिलेक्शन के बाद जो करने जा रहे हैं वो पावर नहीं आपको मिलने वाली है, आपको सर्विस की एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. जी. जी. तो ये सबसे बड़ा चेंज है या सबसे बड़ा फैक्टर है जो सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. राइट. सर्विस आपको करनी है, वो सर्विस आप कर पाते हैं बिकॉज आपकी उस पोस्ट के साथ बहुत सारी पावर जुड़ी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है आप, एंड वो अथॉरिटी और पावर इसीलिए आपको दी गई है क्योंकि आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएँ, क्विक डिसीजन ले पाएँ और लोगों की सर्विस कर पाएँ. अदर देन दिस लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके हर एक डिसीजन पब्लिक डोमेन में है, आपका हर एक कंडक्ट पब्लिक डोमेन में है. तो आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर समय वॉच किया जा रहा है, हर समय आपको लोग आपके हर एक्ट को फॉलो करने वाले हैं. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड ट्रांसपेरेंट. आई थिंक वन ऑफ द नोटेबल टाइम्स वाज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट जब वहाँ पे कुंभ मेला हुआ था. एंड पूरे देश में 4 जगहों पे कुंभ मेला होता है. अभी आई थिंक पिछले 1-2 साल में प्रयागराज का जो कुंभ मेला है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी. आप ज़रा बता सकते हैं कि नासिक का जो कुंभ होता है उसकी क्या लेगेसी रही है एंड व्हाट वाज योर की लर्निंग्स फ्रॉम दैट टाइम? नासिक कुंभ मेला 2015 में हुआ था पिछला, और आने वाला कुंभ मेला 2027 में है. और मेरा पोस्टिंग 2015 फरवरी में, जस्ट बिफोर कुंभ मेला, फ्यू मंथ्स प्रायर टू कुंभ मेला आई वाज पोस्टेड देयर. There are many challenges and I got very good support from the government and then especially the then leadership and the whole team within the district who has contributed towards Kumbh Mela implementation and Kumbh Mela preparedness, including municipal corporations and all the government bodies. Also the participation from the local citizens, participation from industrial bodies, participation from the media and support by the media also. So everyone has played a very key role. That's why the Kumbh Mela of 2015 was a very successful Kumbh Mela. I'm not saying these are the report, because the Kumbh Mela happened without a single incidence of any mishappening, any epidemic outbreak, any missing, not a single death, not a single accident. And
लाखों करोड़ों लाखों लोग करोड़ लोग एक आते एक हैं। दिन के लिए जी, जी, एक एक दिन बिल्कुल। में वहाँ जमा होते हाँ हैं। जी। हर एक व्यक्ति को उस पवित्र स्थान में वो होली डिप या वो स्नान लेना होता है। हाँ जी, बिल्कुल, लोग बहुत इमोशनल होते हैं उस समय, उनके इमोशंस बहुत बिल्कुल। हाई होते हैं। तो इस सब में बहुत बार आपकी जो स्ट्रक्चर्ड या जो प्लान होता है, आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, बहुत बार आने वाली पब्लिक उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक बात। तो इस सब में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि कुंभ मेला 2015 के बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत जी। सारे ऐसे डिसीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जब हमें लगता था कि नेक्स्ट मोमेंट पे अभी क्या होगा, जी, जी। बट एवरीथिंग वेंट सो वेल। या सर, 2 चीज़ें मुझे लगती हैं ऐसे धार्मिक कॉन्ग्रीगेशंस में जो काम आती हैं, एक है श्रद्धा और एक है शासन। सो दोनों के बारे में थोड़ा अगर आप ज़िक्र करिए कि लोगों की श्रद्धा कितनी इम्पोर्टेंट होती है टू एंश्योर दैट कि लोग भी अपने डिसिप्लिन तरीके से अच्छे से अपने भाव के साथ वहाँ पे आएँ, जुटें और अच्छे से चीज़ें हों, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या-क्या रोल है इसमें? आपने जो सवाल पूछा है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें दो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन है। जी। जहाँ श्रद्धा होती है ना, बहुत बार वहाँ तर्क नहीं होता है, हुँ। और जहाँ शासन होता है वहाँ हर एक जगह तर्क होता है कि ये चीज़ क्यों करनी है और कैसे करनी है और क्यों बिल्कुल, नहीं करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और इसके बीच में एक सिंक बनाने का काम हम लोग करते हैं या जी। कोशिश करते हैं। जी। तो जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा है, उनको हर एक व्यक्ति को उस भगवान के, उस मूर्ति के दर्शन करने होते हैं, उस पवित्र स्थान पे स्नान करना होता है, उनके जो साधु महंत या उनके जो गुरु और जो भी आश्रम और अखाड़े में लोग रहते हैं उनके पास जाना होता है। इस सब के लिए हम पूरा प्लान करते हैं जी। कि रास्ते कैसे होंगे, वन वे कहाँ से होगा, एग्ज़िट कहाँ से होगा, एंट्री कहाँ से होगा, फैसिलिटीज़ हमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जिसमें टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर है, स्टे अरेंजमेंट्स हैं, वो किस रूट पे, किस कैपेसिटी में, कितने, कहाँ पे जी। करने हैं। जी। फिर उसके बाद मूवमेंट प्लान तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान या इमरजेंसी प्लान्स तैयार होते हैं कि इन दिस सिचुएशन हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन विल रिस्पॉन्ड, इन दिस सिचुएशन हाउ वी विल रिस्पॉन्ड। तो हर एक प्रोबेबल घटना जो हो सकती है उसको हम एंटिसिपेट करते जी। हैं और उसका डिटेल प्लानिंग करते हैं, इवन स्पॉट वाइज और हर एक घटना के हिसाब से। तो और उसका रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि उसमें इस केस में हमारा रिस्पांस टाइम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अगर कोई इंसिडेंस है तो उसके बेस पे हमारा रिस्पांस कैसा होगा। तो जैसे नासिक की अगर मैं आपको बताऊं तो 4 बड़े इश्यूज हैं। जी। सबसे पहले, बाकी जो 3 कुंभ मेला होते हैं वो नदी के दूसरे तरफ होते हैं और Correct. जनरली सिटी के बाहर हैं। बिल्कुल। आप चाहे हरिद्वार देखें, प्रयागराज देखें या फिर आप उज्जैन देखें। जी। नासिक का जो कुंभ मेला है वो सिटी के बीचों बीच में होता है, एकदम मिडिल ऑफ द सिटी। एंड ये सिटी का जो ये एरिया है वो बहुत पुरानी सिटी, ओल्ड सिटी है। तो वहाँ पे कुछ नया डेवलप करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो वहाँ पे वो स्प्रेड करना या वो सब बहुत चैलेंज है वहाँ। सेकेंड, नासिक का कुंभ मेला 2 जगहों पे होता है, जी। नासिक में और त्र्यंबक में। तो जी। अखाड़े भी स्प्लिट होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी 2 जगह पूरा फोकस करना पड़ता है। तीसरा, सीजन। बाकी के जो कुंभ मेला होते हैं आइदर फरवरी, मार्च, अप्रैल, जी। जनरली इन महीनों में होते हैं। नासिक का कुंभ मेला जो होता है वो अगस्त और सितंबर में होता है, जबकि मानसून पीक पे होता है। और नासिक में जो एवरेज रेनफॉल है जिस एरिया में होता है नासिक और त्र्यंबक में, वहाँ एवरेज रेनफॉल इज 3000 मिलीमीटर। ओह माय गॉड। इन दैट कंडीशन बहुत सारे डिजास्टर्स के हिसाब से हमें प्रिपरेशन Prepare करनी करना पड़ती है, इंक्लूडिंग फ्लड। सो द अमाउंट ऑफ एम्बिग्विटी एंड कुछ भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा है। यस। तो इसीलिए उसके प्रिपरेशंस जो है काफ़ी पहले से शुरू करने पड़ते हैं। सब तरह के प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं जी। सारे तरह के। बहुत बार हमें एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख के तैयार करते हैं। इसका फ़ायदा भी सिटी को होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी फ्यूचर डिमांड्स की या एक बड़े साइज को ध्यान में रख के किया गया है, तो यू गेट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर।
थोड़ा सा कुंभ मेला के समय उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर होता है, बट ओवर द पीरियड इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन्स और टू द resident of the towns and the districts कि they get better infrastructure and connectivity. हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में यूपी का जो कुंभ मेला हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई थी कि परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चीज़ें होती हैं. तो इसके बारे में बताएंगे. लगभग परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका आप बता रहे हैं कि वो आई थिंक लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है फॉर द सिटी. परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, मीन्स कनेक्टिविटी टू द डिस्ट्रिक्ट में नासिक को आने वाले सभी तरह के रोड हैं, वो 4 लेन बनाए जाते हैं. अभी किस रोड से कितना फ्लो आएगा उस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है. प्लस आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी सिटी के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी वाटर सप्लाई कैपेसिटी है, आपका सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है आपका. तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन होता है, और वो अपग्रेडेशन जब हम करते हैं तो कुंभ मेला में आने वाले भाविकों को ध्यान में रख के किया जाता है. सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कैपेसिटी को ध्यान में नहीं होता. इसमें से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें परमानेंट फ्यूचर में सिटी के लिए लगने वाला है उसको हम परमानेंट स्ट्रक्चर उसमें करते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें टेम्परेरी पीरियड के लिए लगता है उसको हम टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं. तो जिसमें साधुग्राम है, बहुत सारे टॉयलेट्स बनते हैं टेम्परेरी, बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम टेम्परेरी ले की जाती है, सीवेज लाइंस डाले जाते हैं, टेंट्स अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ बनती हैं, साधुग्राम बनते हैं. तो ऐसे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि टेम्परेरी तैयार किया जाता है. आप वन की लर्निंग जो आपको लगता है इन फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट्स के टाइम, जो आपको लगता है कि अब जब आप कैपिटल में काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, आपने इंडस्ट्रीज़ का भी दारोमदार उठाया था, आप MIDC का भी CEO हैं, व्हाट हैव बीन दोज की लर्निंग जो अब यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बजट क्रिएशन में आपको लगता है बहुत ही यूज़फुल है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा है पिछले 20 साल की सर्विस में, दैट इज़ द कनेक्ट. जी. तो जिस सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका स्टेक होल्डर है या एंड यूज़र है, उसके साथ आपको एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. उसके लिए आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली आप जो कर रहे हैं वो आपको बताना होता है, और उसी तरह से आपको रिसीव भी करना चाहिए कि उनके क्या इश्यूज़ हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. जी. जब ये मैच होता है तो हमें अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, हम अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम्स भी जल्दी और इजी तरीके से सॉल्व होते हैं, एंड वो जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड द गवर्नमेंट, ये कम हो जाता है. सो दिस इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग इन लास्ट 20 years. So our service is also designed in such a way कि they first give us a training of 2 years, including the district training of 1 year. Then they give us posting of initial level at the SDM, and even in the provision period we do Tahsildar, BDO, Chief Officer of Nagarpalika. We do get exposure of each and every sector, each and every post, and we do understand the problems also of those particular sector and the reasons. We also got the opportunity, it is a part of our training that we being attached with the army also for 15 days on the border areas to understand their issues. So this is how they have planned the training. And after that, then field postings, so you get the first hand knowledge of the field, and you are full of this enthusiasm and energy, so you go and feel and implement everything, and then you learn by experience. And then slowly you get experience, and you become the policy maker. After this. बिल्कुल. Now I think shifting gears, would want to touch upon the first major theme for Maharashtra, and you have spent time as the Development Commissioner Industries. अभी आप CEO हैं of MIDC, तो आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ही क्लोजली देखा है for Maharashtra and how policy is created for the same. तो कैन यू फर्स्ट टेल अस कि अगर हम देखें 28 स्टेट्स हैं पूरे कंट्री में, एंड महाराष्ट्र का GDP का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 14% है, तो इट इज़ वेरी वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल GDP. तो व्हाट हैव बीन सम ऑफ द हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स, एंड व्हाई इज दिस सो कि महाराष्ट्र इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है फॉर GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया? There are many factors. Basically, first thing I would say that this is very fortunate for me to get an opportunity in the industry department again, and working as COO MIDC. I have been
the Development Commissioner of Industries. I was responsible for drafting of the policies. I was responsible for incentives, disbursement. बिल्कुल. Uh, I was part of the single window system. I was chairman of the single window system, and I was commissioner of export also. And after that experience, I'm getting that opportunity to implement those policies. Maharashtra, there are multiple factors behind the Maharashtra's success and journey of industrial development. The first thing I would say, the strategic locations of Maharashtra. Initially, Bombay was the first port, and it gave an advantage to Maharashtra to become the financial capital of the country, trade capital of the country, commercial hub of the country, and slowly it has strengthened its position. Right. And now once you talk about India outside India, it's Mumbai. Right. Other than capital of the Definitely. country. Yeah. So this is a geographical advantage and the visionary leadership. They have invested a lot ahead of time Right. in institutional making and the infrastructure development. These are the two key factors which have played important role in industrial growth of Maharashtra. Right. So if I have to tell you about the Correct. institutional setup, बिल्कुल. so MIDC was established in 1962. You just think immediately after the independence. Yeah. And since then, MIDC is creating an ecosystem for industrial growth. Right. This includes land, this includes infrastructure, this includes all the facilities for industrial development. Right. Today we have 300 plus industrial township in Maharashtra. This industrial township is spread over the land of almost 250,000 acres in Wow. Maharashtra, which is one, I think, largest in the country. Second, I told about the infrastructure ahead of time. Correct. We built the JNPT, we built the Bombay Port Trust, we built the roads, we built industrial townships, and now also we are continuing the same trend. Right. You see the समृद्धि कॉरिडोर जी. 700 किलोमीटर का नागपुर से बॉम्बे को कनेक्टिविटी. जब ये बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसके प्लान पे और इसके बनने पे प्रश्न चिन्ह लगाया था. लेकिन आज आप ये देख सकते हैं कि ये आज पूरे महाराष्ट्र की लाइफलाइन बन गया है. करेक्ट. आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारा का सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ सेंटर्स जो है इस समृद्धि कॉरिडोर के आसपास रहेगा. अच्छा. नॉट ओनली समृद्धि कॉरिडोर, आने वाले समय में वाडवन पोर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट आने वाला है. बिल्कुल. आप देखिए अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि समय से पहले, ठीक है, मेट्रो का डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन या डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, हो सकता है कि महाराष्ट्र में मेट्रो 15-20 साल पहले आ सकती थी. बिल्कुल. बट जिस गति से मेट्रो का काम किया है, जितना बड़ा नेटवर्क पिछले 5-7-8 सालों में मेट्रो का तैयार हो रहा है, ये अपने आप में एक, आप किसी भी मेट्रो की स्टोरी को देखिए कि इतना लंबा नेटवर्क इतने कम समय में कहीं भी तैयार नहीं हुआ. तो ये प्रिपेयर्डनेस जो है आने वाले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेस बनेगी. आप इस बात को ध्यान रखें. वेरी वेरी इंस्पायरिंग आई वुड से, एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट the growth story does not end. ऐसा नहीं है कि क्योंकि we are the state is ahead from all the other states and is doing so well तो थोड़ा लैक्स कर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नए पोर्ट्स आ रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं, नई आपके एक्सप्रेस वे हाईवेज वगैरह बनाए जा रहे हैं. सो बोथ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल आपका मैकेनिज्म as well as आपका infrastructure growth are two major levers that you have talked about. Yes. जी. As I mentioned, institution building, infrastructure upgradation, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं. These were two important factors. क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले देखती है कि आपके पास कनेक्टिविटी है कि नहीं है, आपके पास इकोसिस्टम है. करेक्ट. ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से, या ये दो इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र को एक एज मिला है. जी जी. और इसके अलावा महाराष्ट्र हमेशा से पॉलिसी फ्रंट पे भी बहुत डायनेमिक रहा है. जी जी. हमेशा थोड़ा अगर इस पे आप लाइट डालें थोड़ा और. तो महाराष्ट्र हमेशा से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सपोर्टिव पॉलिसीज बनाए हैं. आप देखेंगे कि इवन एज ए स्टेट वी केम आफ्टर इंडिपेंडेंस,
बट प्रायर टू दैट आप देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पर बढ़ा। तो बॉम्बे वॉज टेक्सटाइल हब, स्लोली बॉम्बे फिर कैपिटल फाइनेंस एंड कैपिटल हब बना, सारे बैंकिंग फैसिलिटीज आ गए। अभी आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे सर्विस हब बन रहा है। फिल्म सिटी, फिल्म इंडस्ट्री को पूरा उन्होंने स्कोप दिया। इसी तरह से अगर आप रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखेंगे, बॉम्बे के बियॉन्ड बॉम्बे, जिन्होंने सिर्फ अपना डेवलपमेंट बॉम्बे तक सीमित नहीं रखा, पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन किया कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बियॉन्ड बॉम्बे जाए जी। उसमें आप देखेंगे पुणे में एज ए ऑटोमोबाइल हब ऑफ द कंट्री, राइट, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इंडिया में है और पुणे में उसका बेस नहीं है जी। मोस्ट ऑफ द कंपनी आर ऑटोमोबाइल कंपनी आर मैन्युफैक्चरिंग इन पुणे, राइट। फिर पुणे के बाहर आप देखिए कोल्हापुर टेक्सटाइल का हब है। आप अभी देखेंगे आने वाले टाइम में गढ़चिरौली और चंद्रपुर, अच्छा, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये तो विदर्भ एरिया का के आसपास है ये आप जो बता रहे हैं? यस, हाँ। तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली नागपुर से लगभग 2 से 3 घंटे की दूरी पर विदर्भ का पार्ट है, ईस्टर्न विदर्भ का पार्ट है। उस वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा स्टील का इन्वेस्टमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ आने वाले समय में आप देखेंगे। दिस विल बी नोन एज द न्यू स्टील सिटी ऑफ द कंट्री। नॉट ओनली स्टील, द कोल गैसिफिकेशन के इंडिया के 4 या 5 बड़े प्रोजेक्ट सारे के सारे उसी जगह पे आ रहे हैं, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। ये अगेन ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ साथ आप देखेंगे एडवांस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट उन रीजन्स में हो रहा है। तो हमारे पॉलिसीज़, हमारे पॉलिसी मेकर ने इतने इस तरीके से डिज़ाइन किए कि जहाँ पे इकोसिस्टम है, जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए सुटेबल लैंड है या जहाँ पे लोकेशन सुटेबल है, वहाँ पे वो सेक्टर ग्रो करे। तो आप देखिए फाइनेंस, बैंकिंग, सर्विस इंडस्ट्री बॉम्बे में ग्रो कर रहा है, आईटी ग्रो कर रहा है, पुणे में ऑटोमोबाइल ग्रो कर रहा है, गढ़चिरौली उधर आप माइन बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इसी तरह से नागपुर में अभी डिफेंस का सेक्टर एंड कॉरिडोर, पूरा बहुत बड़ा कॉरिडोर डेवलप होने वाला है। नासिक में आप अगर देखेंगे तो एनर्जी एंड अलग इक्विपमेंट रिलेटेड सेक्टर बनने वाला है। छत्रपति संभाजी नगर में फार्मा एंड इंजीनियरिंग का सेक्टर है। सो पूरे महाराष्ट्र में वो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो देयरफॉर इक्विटेबल ग्रोथ इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1-2 सेंटर्स बन के वहाँ फ्लरिश हो जाए एंड देन डिस्पैरिटी अक्रॉस द स्टेट आए। यस, सो एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी। करेक्ट, this is the impact of the policy and vision of the leaders. Right. They see state as a whole. They see the capacity of that particular region. They see the strength of that particular region. They see the opportunity and potential lying in that particular region. How to tap that potential and the capacity of that particular region and connecting with the industry and creating a growth mechanism for that region. आपने मेंशन किया था कि विदर्भ रीजन, ईस्टर्न विदर्भ में इंडस्ट्रीज वगैरह अब काफ़ी ग्रो हो रही हैं। दैट रीजन टिपिकली इज़ इन फेमस फॉर द फार्मर सुसाइड्स एंड काफ़ी फार्मर इश्यूज जो हिस्टोरिकली रहे हैं। सो इज़ दिस वन ऑफ दोज इंटरवेंशन जिससे लगता है कि लोग वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी एंड देयरफॉर इन जनरल आपके इंस्टेंसेस ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर वुड रिड्यूस एंड पीपल विल देयरफॉर थ्राइव बेटर एंड लोगों का मानसिक एंड आपका फाइनेंशियल दोनों तरह का अपलिफ्टमेंट होगा। यस, आई विल टेक 2 एक्स्ट्रा मिनट हियर बिकॉज यहाँ पे आपने फार्मर्स का कनेक्ट विद द इंडस्ट्री बताया है। तो आई विल टेल यू हाउ द गवर्नमेंट थिंक्स। जी बताइए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री और फार्मर को कभी अलग नहीं देखते। गवर्नमेंट के लिए दीज आर द 2 कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। जी, तो जो भी इंडस्ट्री वहाँ लेके जा रहे हैं और उस इंडस्ट्री से फार्मर डिस्प्लेस नहीं होगा, उस फार्मर को उस इंडस्ट्री से कनेक्ट मिलेगा, उस फार्मर की इनकम वहाँ बढ़ेगी। जी, ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के इंडस्ट्री लगाई जा रही है। तो जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, बैरन लैंड है, वहाँ पे हम इंडस्ट्री प्रेफरेबली लेके जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन कंडीशन सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें वो इंडस्ट्री वन पर्टिकुलर लोकेशन पे लगाना मजबूरी होती है। तो वहाँ के फार्मर के जो लैंड एक्विजिशन के हैं, कंपनसेशन है, उनको हम देते हैं। बट मेरा पॉइंट दूसरा था कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं, सोलर पंप्स फॉर द फार्मर्स। राइट, उसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो जो हमारे फार्मर्स को उस समय लोड शेडिंग एंड बिकॉज ऑफ द
इलेक्ट्रिसिटी पावर अवेलेबिलिटी, जनरली रात में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दिया जाता, तो बेचारे फार्मर्स रात को अपना फार्मर पे जाके इरिगेशन करते थे, पंप चलाते थे, और उसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं भी होती थी। कोई कुएं में गिर जाता था या फिर किसी को सांप बिच्छू या कोई जानवर बिल्कुल की वजह से इंसिडेंसेस होते थे। इससे होगा ये कि जब सोलर पंप्स उनको मिल रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी डे टाइम में मिल रही है, एंड ये सारे इंसिडेंसेस कम हो गए, एंड द रिलायबिलिटी, उनकी जो डिपेंडेंसी ऑन दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड। जी इसका दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता था एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी को, वो बेनिफिट अभी इंडस्ट्री को पास ऑन हो जाएगा। सो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर फार्मर एज वेल एज द इंडस्ट्री। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बिकॉज फॉर अ ले पर्सन लगता है दोनों आइसोलेशन में शायद सरकार सोचती होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीग्रेटेड तरीके से, ताकि दोनों का फायदा हो एंड एक दूसरे को ऐसा ना हो कि एक को हैम्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब गवर्नमेंट का ये जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ओवरऑल सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन डिस्कशन जो हमारा मेन स्टेक होल्डर्स के साथ होता है, लेकिन बाकी के स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होने वाला जो इकोसिस्टम है उसको ध्यान में रखा जाता है, एंड फार्मर इज द कोर ऑफ द इकोनॉमी। राइट हमेशा से, बिल्कुल, बिकॉज इंडिया हैज बीन नोन एज द एग्रो बेसिक। करेक्ट। तो फार्मर को हमेशा से ध्यान में रखा गया है, और इंडस्ट्री लगाते समय भी फार्मर प्रोड्यूसर्स जो हैं, एग्री प्रोड्यूसर्स हैं, उससे क्या इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए इंडस्ट्री यहाँ कैसे लगा सकते हैं। जी, हम डायरेक्ट फार्मर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करें, वहाँ इंडस्ट्री में प्रोसेस हो, वापस इंडिया में आए, वैसा नहीं। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो शुगर फैक्ट्रीज, जी महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो अभी सभी जगह इथेनॉल, बिल्कुल, और अभी हम बायोगैस पॉलिसी, बायोफ्यूल पॉलिसी, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, इन सभी पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे फार्मर और इसका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग अभी है, और उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया जाएगा, और डायरेक्ट फार्म से प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फैक्ट्री में जाएंगे, और वहाँ से बन के हमारे कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए और एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे। फार्मर के उसमें एक और जो कॉन्सेप्ट जनरली बहुत बात होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक ही लैंड पर 4-5 आपके फैमिली के ही फार्मर्स लगे हुए हैं, एंड देयरफॉर सबका एक तरह से मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही कम है, राइट। सो जब इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं तो वहाँ पर न्यू जॉब्स विल गेट क्रिएटेड, तो सम ऑफ दीज फार्मर्स जो हो सकता है कि वहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, वो शायद वहाँ पे काम करने के लिए योग हो सकते हैं, बट इसको करने के लिए स्किलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सरकार कैसे ये इनेबल करती है कि नए लोग जो है वो स्किल हो करके फार्मर्स या फार्मर्स हो या कोई और भी हो, मतलब बी अदर्स ऑल्सो, तो कैसे हो सकते हैं वो? इसमें 3-4 इनिशिएटिव्स हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको बताने चाहिए। गवर्नमेंट, जैसे मैं हमें पहले भी बोला है कि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं जी। सो सबसे पहले हम फार्मर की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जिससे कि या जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या बहुत सारे स्कीम्स हैं उसके थ्रू कि फार्मर की इनकम फ्रॉम द फार्म कैसे इंक्रीज की जाए। दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव। जी बिल्कुल। सेकेंड, हम ये सोचते हैं कि अगर उसके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को खेती में लगाने के बजाय बाकी 3 को हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दें। उसमें से हो सकता है एक को हम स्किलिंग कंपोनेंट के थ्रू तैयार करके जॉब के लिए तैयार करें। बिल्कुल। बट मुझे ऐसे लगता है कि फार्मिंग प्लस जॉब, अगेन ये भी उसको उतना सफिशिएंट वो नहीं दे सकते, तो हम गांव-गांव में एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के, हर घर से एक एंटरप्रेन्योर तैयार हो, इस अप्रोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था। उस चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी को अगर खुद का व्यवसाय करना है तो उस व्यवसाय के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ उसको बैंक लोन मिलने में मदद करते हैं, और उस बैंक लोन का 25 to 35% गवर्नमेंट बियर करती है उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो इस तरीके से हम सपोर्ट करते हैं, और पिछले लगभग 4 से 5 सालों में हमने अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 80,000 एम्प्लॉयमेंट ये एंटरप्रेन्योर्स के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। उसमें से कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ इन प्रोग्रेस हैं, और कुछ आने वाले समय में कंप्लीट। काफ़ी आई थिंक काफ़ी प्रोफाउंड कि
फार्मर्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करें, जो जॉब सीकर्स हैं उनको राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंड जो आपके जॉब गिवर्स हैं, मतलब बेसिकली वो भी दैट्स द नेक्स्ट थर्ड थिंग कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को वहाँ पे प्रमोट किया जाए। यस, तो हमारी सोच यही है कि एक ही फैमिली में फार्मर भी होगा, जॉब करने वाला भी होगा और एंटरप्रेन्योर भी होगा। तो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारी हमेशा से सोच रही है ये फार्मर है, ये इंडस्ट्रियल है, एंटरप्रेन्योर है, ये गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, प्राइवेट जॉब करने वाला है। तो ये तीनों जब एक फैमिली में होंगे तो ये डिफरेंशिएशन कम होगा और एक बेटर सोसाइटी तैयार होगी, और एक इसके बीच में जो स्ट्रेंथिंग बॉन्ड जो तैयार होना चाहिए, जैसी सोसाइटी हमारी कल्पना में है वैसी सोसाइटी तैयार होगी। I think very, very interesting. Now, coming back to one of the things that we were initially discussing, which was the institutional mechanisms जो बने हैं, आपने जिक्र किया था MIDC का थोड़ा सा, क्योंकि आई थिंक व्यूअर्स मे नॉट नो कि MIDC का क्या मैंडेट है, व्हाट वाज दिस बॉडी। आपने बताया 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो क्या क्या चीज़ें करता है, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड? So MIDC originally was built to create industrial township with a broad objective, and so far it has done a fantastic job. So far we have created 300 plus industrial township, and the total area would be somewhere around 2.5 lakh acres. Right. So main job or main mandate is to acquire the land for industrial purpose. Okay. Develop that land, provide additional support infrastructure or necessary infrastructure means the electricity, the water, drainage, and roads, everything within the premises and up to the premises, park. Okay. These are two things. And then this is one thing. Second, then give them an ecosystem where they will get all the permissions, approvals, and their problems will be solved under one roof. Okay. So MIDC was playing a very key role with reference to this also, because MIDC is also planning authority for all these industrial townships. They can get their building permission and everything. Okay. Everything under one roof within the MIDC. The third job MIDC was doing the investment promotion. Right. So far. And it has done a fantastic job. You see the what kind of investment has come in Maharashtra in last so many years. Now we are continuously working to strengthen these capacity and go beyond these capacities. Right. There are issues we are trying to, because now you see the MIDC is spread over 2.5 lakhs acre area. And the expectations of these investors, which they have invested on these plots, are increasing continuously. Right. So now it is our duty also to see what are the problems they are facing, how more efficiently we can solve their problems and issues within a given time frame with the least trouble to, or we can minimize their problems also. Correct. So we are continuously working to, and we are continuously evolving. राइट. सो इसमें आपने बताया कि 2.5 लाख करोड़ का लाख एकड़ 2.5 लाख एकड़ में पूरा स्प्रेड है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स. डिसाइड कैसे करते हैं कि कहाँ पर बनना चाहिए? हाउ इज दैट डिसीजन टेकन? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. फर्स्ट थिंग वी सी द डिमांड. जी. कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री बोलती है कि हमारे लिए ये पर्टिकुलर एरिया सुटेबल है, हमें यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, तो डिमांड इज़ वन ऑफ द की फैक्टर. फिर हम असेस करते हैं कि वो इंडस्ट्री वहाँ लगने के लिए हमें क्या चाहिए. लैंड चाहिए, वो लैंड वहाँ अवेलेबल है क्या. थर्ड हम देखते हैं कि उसके लिए पानी लगेगा, तो वाटर अवेलेबिलिटी नियर बाय एरिया में है या नहीं है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से दे सकते हैं, एंड द कनेक्टिविटी टू द मार्केट. राइट. ये सारे फैक्टर्स होते हैं जनरली उसको डिसाइड करने के लिए. लैंड, डिमांड, रिसोर्सेस एंड स्किल्ड वर्कफोर्स ऑल्सो, एंड द कनेक्टिविटी टू मार्केट. दीज आर फैक्टर्स. अब दिस क्रिएट्स एन ओवरऑल इकोसिस्टम फाइनली. राइट. एंड देन वी डिसाइड. इसे मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे जैसे आपने 4 चीज़ें बताई, इनमें से 3 चीज़ें हैं
मान लीजिए कहीं पर हो सकता है स्किल्ड लेबर ना हो, दैट कुड बी वन, दैट कुड बी डेफिसिट। कहीं पर हो सकता है कि अभी कनेक्टिविटी नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं बट वहाँ ढंग से कनेक्टिविटी नहीं है। तो कितना इन्वॉल्वमेंट होता है MIDC का टू काइंड ऑफ इनेबल दैट मिसिंग लीवर टू बी प्रेजेंट? As I told you, we are the nodal body for industrial development or creation of industrial park. हाँ So we will ensure, or we do ensure, that the missing factor is being provided, or we do create a mechanism कि जिससे कि जो भी मिसिंग फैक्टर है उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। देयर इज नो परफेक्ट लोकेशन और सिचुएशन और कंडीशन के जहाँ पे ये पांचों चीजें एकदम से आपको रेडीली अवेलेबल मिलेंगी। देयर आर इकोसिस्टम जहाँ पे डेवलप हो गए हैं, लाइक पुणे अगर आप देखेंगे, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, या जो भी इकोसिस्टम देखेंगे तो वहाँ के अलग इश्यूज शुरू होते हैं। वहाँ की लैंड अवेलेबिलिटी वहाँ चैलेंज बन जाता है। करेक्ट। जहाँ पर लैंड अवेलेबल है वहाँ पे रिसोर्स या स्पेशली वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी इशू होता है, तो उसको हम मैच करते हैं। हाँ। उसके लिए हम स्कीम्स करते हैं, इंडस्ट्री के साथ टाइप करते हैं, डिमांड समझते हैं। हाँ। उसकी डिमांड को असेस करते हैं, फिर उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सपोज पानी लाना है तो कितनी दूर से लाना पड़ेगा, अगर नहीं ला सकते हैं तो रिसाइकलिंग के क्या प्रोसेस हो सकती है, और उसी जो यूज वाटर है उसको कैसे कम पानी में हम रिसाइकिल करके कर सकते हैं। स्किल वर्कफोर्स लाना है तो कहाँ पे हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है, उनको ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उनको उस इंडस्ट्री में जॉब लाइन के लिए लेके आएंगे तो उनको क्या बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं एंड देन स्लोली वहाँ पूरा इकोसिस्टम तैयार। तो बाकी डिपार्टमेंट से इसलिए बहुत कोऑर्डिनेशन का इसमें रिक्वायरमेंट होता होगा। या जी तो MIDC नोडल बॉडी है, बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन लगता है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ आपको वाटर अवेलेबिलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, रेवेन्यू के साथ करना पड़ता है, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी एंड लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ में उनका की इंपॉर्टेंट रोल होता है। PWD और हाईवेज़ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, रेलवेज़ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगता है। पोर्ट्स के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए MIDC अभी तक रोल प्ले करती रही है। और भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे मैंने बोला ना, गवर्नमेंट ने हमेशा से इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे ध्यान दिया। करेक्ट। जैसे MIDC बनाया, उसके बाद एक MITL बनाया, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड, राइट, जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी तैयार कर रहा है। क्या होता है अगेन दिस इज अहेड ऑफ टाइम और प्रिपरेशन। थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। हाँ, तो प्लग एंड प्ले इज मतलब हमारा ये है कि इंडस्ट्री के आने से पहले हम वहाँ सब कुछ तैयार रखते हैं। अच्छा। इंक्लूडिंग लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और समटाइम शेड्स ऑल्सो। तो आप जाइए, मशीन लगाइए, पिन लगाइए और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। अरे वाह। सो दिस इज अ प्लग एंड प्ले थ्योरी। तो इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लग एंड प्ले फैसिलिटी MIDC का जो SPV है MITL, उसके थ्रू बनाया है छत्रपति संभाजी नगर में जी। अप्रोक्सीमेटली 10,000 एकड़ पे ये फैसिलिटी तैयार है। एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैसिलिटी। और एक सिटी करके बोलते हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में हम दूसरा भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं MITL के थ्रू, दैट इज इन दिघी। अगेन वो 10,000 एकड़ से ज़्यादा जगह में वो भी बनेगा जी। तो जैसे मैंने बताया MITL है जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के लिए काम कर रहा है। सेकेंड, अभी मैत्री एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको एक्ट से इनेबल किया है, जो कि अप्रूवल एंड प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्लीमेंट करके तो बिजनेस इश्यूज पे काम कर रहा है। सो देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। इन्वेस्ट महाराष्ट्र अभी रिसेंटली लॉन्च किया है CM सर ने, मीन्स अभी वो कैबिनेट डिसीजन लिया है जी। इसी के साथ नए कमिश्नरेट फॉर MSME और सर्विसेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं और उसके क्रिएशन की प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो जैसी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से या आने वाली डिमांड को असेस करके आज ही हमारा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम होना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ अभी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े डिसीजन किए हैं। तो सर जो आपके ये MIDC पार्क्स हैं, राइट, इनके बाद बहुत बार रिक्वेस्ट आती हैं, डिमांड्स होती हैं कि अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक एंड डोमेन स्पेसिफिक वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट्स हों, तो इसके लिए क्या क्या कर रही है सरकार? सो MIDC ने पहले से ही इसके बारे में सेक्टर स्पेसिफिक पार्क की पॉलिसीज़ रखी है और बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक पार्क ऑर्गेनिकली भी डेवलप हुए हैं।
तो कुछ हमारे पास जैसे केमिकल इंडस्ट्री बेस्ड पार्क हैं, हमारा वाइन इंडस्ट्री पार्क है, हमारे पास टेक्सटाइल पार्क है, जिसमें और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर और रीजन की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए वहाँ उस पर्टिकुलर सेक्टर का पार्क बनाया। जैसे मैंने पीएम मित्रा पार्क की बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जो अमरावती में हमारे लगभग 2000 एकड़ एरिया में ये पीएम मित्रा पार्क बन रहा है। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए ऐसे बहुत सारे पार्क महाराष्ट्र में हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं। और वो एक होलिस्टिक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। नॉट ओनली सेक्टर स्पेसिफिक पार्क, वी ऑल्सो हैव सम कंट्री स्पेसिफिक पार्क ऑल्सो। अच्छा, जैसे जापानीज इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप देखेंगे तो सुपा में सुपा में वो जापानीज इंडस्ट्रीज़ के लिए पार्क है। इस तरह की और भी डिमांड हमारे पास आ रही है लाइक कोरियन इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो हम उनके साथ डिस्कशन करके कंट्री स्पेसिफिक पार्क बना रहे हैं, जिसमें उस कंट्री के सारे कंपनीज वहाँ पे आके कंपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। काफ़ी, सो नॉट ओनली सेक्टर बट ऑल्सो कंट्री स्पेसिफिक दोनों चीज़ें हैं बेसिकली। एंड सो जो आपके डोमेन स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक है, तो वहाँ का स्किल लेबर भी उसी टाइप से फिर मोबिलाइज होगा? या तो जैसे कंट्री स्पेसिफिक है तो वहाँ लैंग्वेज के इश्यूज हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, तो वो रिजॉल्व होते हैं। और जहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक पार्क हैं, उस पर्टिकुलर स्किल सेट का वर्क फोर्स नियर एंड नोड तैयार होता है, पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, उसका वेंडर इकोसिस्टम तैयार होता है। तो उससे उनकी वाइबिलिटी, फाइनेंशियल वाइबिलिटी बढ़ती है। बहुत बार हम चाइना मॉडल की बात करते हैं कि इफ यू गो टू वन सिटी यू विल फाइंड वन प्रोडक्ट। सो दिस इज बेसिकली दिस इज द सेम थॉट प्रोसेस वी आर डेवलपिंग अवर पार्क। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हमने किए नहीं, हमारा स्केल शायद उतना बड़ा नहीं रहा होगा, बट हमने सेक्टर स्पेसिफिक पार्क महाराष्ट्र में किए हैं जी, और बहुत सारे सेक्टर्स के पार्क। आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इलेबोरेट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें जाते हैं टू मेक इट हैपन। आपने मेंशन किया, वो मैं अब थोड़ा उस पर डबल क्लिक करना चाहूँगा मैत्री के बारे में, बिकॉज आपने मेंशन भी किया था कि इन्वेस्टमेंट आने के लिए आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या होता है मैत्री? एक्ट 2023 में पास हुआ था, क्या व्हाट इज़ द रैशनल? एंड उसमें सिंगल आई थिंक सिंगल पोर्टल भी, सिंगल विंडो आपका क्लियरेंस सिस्टम भी है, तो थोड़ा और इसके बारे में विस्तार में बताएं। तो जब 2023 में मैत्री एक्ट लाना था, तो जैसे आपने पूछा कि क्या विजन था और किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ये मैत्री एक्ट बनाया, सो द होल सिंगल ऑब्जेक्टिव वाज टू create a mechanism where industry will get everything, all permissions, approvals at one place. They don't have to go to multiple places, multiple offices, everything. And this has to be transparent, this has to be predictable and time bound, and this has to be efficient. जी। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया। उस एक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि ये सिस्टम आगे जाके इफ़िशिएंटली काम करेगा, ट्रांसपेरेंटली काम करेगा, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। राइट। तो एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी भी अप्रूवल के लिए अगर वो मैत्री के थ्रू अप्लाई करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटीज़, तो उसको एक टाइम फ्रेम मिलेगा जो हर एक सर्विस के लिए डिफाइन है। उस टाइम फ्रेम में वो एप्लीकेशन द मोमेंट वो अप्लाई करेगा, रियल टाइम में ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वो अथॉरिटी के पास जाएगी, एंड अथॉरिटी हैज़ टू डिसाइड दैट एप्लीकेशन विद इन द टाइम फ्रेम, एंड दिस इज मॉनिटर्ड ऑन डे टू डे बेसिस एंड रियल टाइम बेसिस। डैशबोर्ड्स, ऑनलाइन सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ द पोर्टल्स, एवरीथिंग इज देयर। Then if suppose the concerned authority, there will be multiple authorities, thousands of authorities. If one particular authority fails to decide that one particular application within the given time frame, immediately at the expiry of the time given to authority, the application will be disabled in the login of the authority. And this will come to Maitri chairman and empower committee, and they will also get a time frame to decide that application. And this ensures, because this is supported by Act, and this ensures every decision is taken in time. Right. Every decision taken transparently.
every decision is taken online. जी Everything is online, so there is nothing hidden. What I have written on file, what he has commented on जी file, there is nothing. Everything you can see what is there on your file. This gives you predictability and certainty about your आई approvals. थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सो जो अभी तक मेरे को समझ में आया है एंड लेट मी जस्ट गैदर ऑल ऑफ दैट टुगेदर कि इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्लग एंड प्ले का रखना सो दैट ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी ईज्ड आउट. कोई भी आएगा सीधे आकर के दे कैन काइंड ऑफ हिट द शो रनिंग. साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट्स अगर आ रहे हैं या चांसेस हैं उनके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी वो इंश्योर करना, ताकि उनको कोई ये ना हो कि अरे हम आएंगे पता चला कि रेड टेपिज्म में चीज़ें डिले हो रही हैं, हमारा पैसा अटका पड़ा हुआ है एंड वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट. I think that is very profound. And I think, and also the fact that Act enabled है, which means there's a statutory backing to it. It's not just like an executive order दे करके किया गया, because that may typically not have the आपका legislative check and balance. I think that is very, very profound. Yes. तो जैसे मैंने बताया ना कि मैत्री एक्ट है, मैत्री एक्ट को और तो करने के लिए मैत्री पोर्टल है और इस मैत्री पोर्टल पे 14 डिपार्टमेंट्स के एज ऑन टुडे 176 सर्विसेज आर लाइव. Wow. And this is fully integrated. Very nice. The moment you apply, the concerned department authority get the data and your application. The moment they write anything, you will get this detail ki as what has been written on my file, whether it is decided, rejected, approved, and everything. जी. As a Matri, we see everything. We means the Matri is a facilitator. Of course. So this is totally transparent. We are continuously evolving. There will be many more features which will be available on Matri portal to support the investor. Right. We are continuously upgrading the portal. We are continuously adding and integrating more services to the investors, and seamless journey for an investor from applications to permissions. They will not know what is happening backside. Means, of course, what are the troubles and what is happening. Yeah. They will definitely know what is written and everything. This is because of transparency. But who is dealing with that? Why is he dealing with? They will get everything on time. This is we are ensuring, and the whole government machinery, including all departments, are so committed to make it a very successful. So far, I think we have resolved or we have given 3.5 lakh permissions through this system. Oh wow, 3.5 lakh permissions. Yes. And most of them timely. Most of them, 99+% is on time. Right. Very. I think काफी scale पे and timely कर लेना. I think that is quite powerful. इसी से एसोसिएट एक टर्म आता है महापरवाना. उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है महापरवाना and how does it? Mahaparvana was designed to give you a comfort where you can start your work on certain terms and conditions that you will avail all those permissions in a given time frame of 6 months and 1 year. Okay. So your work will not stall or because the most you see कि बहुत सारे permissions जो है ना sequential nature में आते हैं. Right. एक लेंगे फिर आप दूसरे लेंगे तीसरे लेंगे और उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. तो आपका परमिशन का जो टाइम विंडो होता है वो 6 महीने साल भर वो आपको इसमें जाता है. एंड दैट इज जनरली वी सी कि दिस इज एन अनप्रोडक्टिव. तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हम ऐसी परमिशंस महापरवाना में देंगे विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं. आपको कमर्शियल प्रोडक्शन जिस दिन स्टार्ट करना है उससे पहले वो सारी परमिशंस अवेल करनी है. तो आपका टाइम सेव हो जाता है. बट उसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट से. उसके जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा. तो मैत्री और महापरवाना आर दे interlinked to in future Mahaparvana will be provided. This is a part of Maitri, but this will be again the part of Act also. So there will not be any legal complications in future for any industry. Got it. I think through this story, but एक जो insight मिल गया है कि कैसे facilitate हो रहा है, attract हो रहे हैं investors, क्योंकि इतना अच्छा robust पूरा ecosystem हमने generate कर लिया है. एक टर्म आई थिंक जो काफ़ी यूज़ होता है इज मैग्नेटिक महाराष्ट्र, एंड उसके 3 वर्जन आ चुके हैं. आई थिंक 2.0 कुछ साल पहले, अब 3.0 आ चुका है. थोड़ा बता सकते हैं व्हाट इज़ द विजन ऑफ मैग्नेटिक महाराष्ट्र? मैग्नेटिक महाराष्ट्र हमारे मुख्यमंत्री महोदय का विज़न और डिसीजन था कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें
जहाँ से महाराष्ट्र का जो ब्रांड है, जी, जो महाराष्ट्र का इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, हाँ, वो हम इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट करें और इंडस्ट्री को भी एक प्लेटफॉर्म दें कि जो उनका इश्यूज हैं वो हम गवर्नमेंट को समझें और दिस विल बी known as the investment promotion body or investment promotion initiative of Maharashtra. तो महाराष्ट्र मैग्नेटिक महाराष्ट्र 1.0, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 और उनके जो इश्यूज हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड या बाकी चीज़ों को देखो उसको भी हम वहाँ पे एड्रेस करते हैं और उससे हमारी बहुत सारी लर्निंग होती है जो पॉलिसी मेकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं. Mostly, this is an initiative where the investors come and they show their intent to invest in Maharashtra, and we do support them Right. after that. Following to that, the Magnetic Maharashtra 3.0, we are in process of प्रिपरेशन के अभी उसकी डेट्स क्या होंगी, इवेंट कहाँ होगा, कैसा होगा, वी आर टेकिंग अंडर दैट प्रिपरेशन. बट इन कंटिन्यूशन विद दिस, under the guidance of Honorable Chief Minister, we have started the District Investment Summit. okay, So Magnetic Maharashtra is for the global investors, Correct. big investors, and there are limitations where we can host Yes. everyone on that platform. So on the similar lines, he said that we should do something like this in the districts. जी, Because every district investor cannot come to Mumbai on a Magnetic Maharashtra. correct, And it's impossible, practically impossible also. definitely, So we have created district investment summits, okay, and this has been implemented or conducted for last 2 years. हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट होता है विच इज ए मिनी वर्जन ऑफ मैग्नेटिक तो महाराष्ट्र. डिसेंट्रलाइजेशन हो गया एक तरीके से. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक जी, महाराष्ट्र जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है. 2024 में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट 36 जिलों में ये डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ. लगभग 96,000 करोड़ के MOU बाय द लोकल इन्वेस्टर्स इन महाराष्ट्र. वाओ, मोस्ट ऑफ देम वर द लोकल इन्वेस्टर्स. लोकल मीन्स किसी का ऑलरेडी फैक्ट्री है या किसी को डिस्ट्रिक्ट में छोटा फैक्ट्री डालना है, छोटा यूनिट डालना है, बिजनेस का. सो दोज MOUs वर साइंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. राइट, The best part, out of that 75 to 80% has already been invested in the district in last 1.5 year. The next year 2025, the MOUs were signed for 1,27,000 crore. राइट, It increased by almost 30%. राइट, Again, out of that 60% has already been implemented by now. वाओ, So we are in process of the District Investment Summit 3.0. The first event has already been done in Nashik. जी, Honorable Chief Minister and with 6 other ministers, this event was graced by all these जी, ministers and dignitaries. वाओ, And almost 14,000 crore rupees MOUs was signed. राइट, And we are not just signing the MOU at the district level. The district administration is putting their all efforts and energy to execute these investment or MOUs. राइट, बिकॉज MOU साइन हो जाना एंड फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में दे कुड बी अ गैप. Yes. यस, So हम उसी मैकेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं कि हमने पहले इवेंट बनाया, MOU साइन किए, एंड नाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंश्योरिंग कि वो इन्वेस्टमेंट का MOU वो एग्जीक्यूट हो प्रॉपरली. उनको आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए they have started taking monthly meetings also. ओके, Monthly meetings and at some places camps also. राइट, So अभी रिसेंटली नासिक में नासिक कलेक्टर ने कैंप लिया. सारे इन्वेस्टर्स आए, उनके क्या इश्यूज हैं एग्जीक्यूशन के लिए. सारे अथॉरिटीज़ आए, 20+ अथॉरिटीज़ आए और उसमें टाइम फ्रेम डिसाइड हुआ ये प्रॉब्लम इतने टाइम में सॉल्व होगा. एंड वी विल बी डूइंग दिस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब होता है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर पर्सन में नॉट बी सो हाई, तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स आर दीज टिपिकली? सो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था DIS बनाने के पीछे कि जो MSMEs हैं या जो डिस्ट्रिक्ट का इन्वेस्टर्स है उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें. तो आप सोचिए कि ये सारे DIS में लगभग 3,500 MOUs पिछले 2024 में हुए, लगभग 4,000 MOUs जो इन्वेस्टर्स के 2025 में हुए. तो आप ये 4,000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है. वाओ, कि उनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है. उनके इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का काम गवर्नमेंट कर रही है. जी, तो दिस विल चेंज
the overall bonding and connect between the industry and government. This is the most important objective we will be achieving, or this will be the key also. Right, of course. The connect between the industry and the government. Right. So I think there is all support to foreign institutional investors, domestic institutional investors, and then district level पे जो investors हैं आपके. So all scale, all geographies को अलग-अलग तरीके से Yes. तो हर एक के लिए strategy भी अलग होती है. Global के लिए अलग है, domestic के लिए अलग है, district के लिए अलग है. But the common thing between all these three is ease of doing business. Ease of doing business, yes. Ease of doing business. Yeah. So that is required by everywhere. Of course. So we are very much committed कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का इन्वेस्टमेंटर हो या डोमेस्टिक हो या ग्लोबल इन्वेस्टर हो, इनका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए. करेक्ट. तो उसके लिए इफ आई हैव टू टेल यू, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गिव अस ए मैंडेट कि जितने भी हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उनको आप कंसोलिडेट करो जी. उनको आप जो भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं उनको आप उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो. बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट में डिसीजन होता है बट अवेयरनेस नहीं होता. राइट. बट इसके साथ साथ उन्होंने 3 मैंडेट दिए जी कि एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को ये फील नहीं होना चाहिए कि देयर इज ए लेयर जो उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है. राइट. तो इसको करने के लिए 3 चीज़ें उन्होंने बताई. सबसे पहले आप उनकी अप्रूवल का टाइम रिड्यूस करो. करेक्ट. तो अप्रूवल का टाइम रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया कि बहुत सारे सेक्टर्स को स्टडी किया. हर एक सेक्टर में नंबर ऑफ अप्रूवल्स अलग है, नंबर ऑफ अथॉरिटीज अलग है, बिल्कुल. एंड उनमें लगने वाला टाइम भी अलग है. बिल्कुल. एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी, लोकेशन, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्टर है कि मैन्युफैक्चरिंग. स्टडी करने के बाद वी रियलाइज देयर आर 3 थिंग्स वी नीड टू वर्क. राइट. One thing, the number of permissions and approval required and not required. Right. So, which are not required to be eliminated. बिल्कुल. So, we have identified many of them. We are in process of removing those approvals. बिल्कुल. And we are subsuming some of the approvals with the main permission. Suppose if you are applying for building permission, you will automatically get the connection for the permission or NOC for electricity connection and water connection. You don't have to apply separately. Okay. So this is what we are doing. So governance process re-engineering हो रही है. Government process re-engineering. Second thing, one thing is the elimination. Second thing, the permission required. How many number of documents you asked. So we are assessing and we are reducing the number of documents required. Right. And this will minimum. Our target is to reduce 50% document requirement. Wow. So once we require reduce the number of document requirement, automatically the time will come down. Right. Because I'll take less time to assess and they need less time to collect those documents. Correct. We don't stop here. Next step is to reduce the number of steps to be followed for approval. So suppose the file goes to the 6th level, 7th level, 8th level, we are restricting up to maximum 4 level. Any approval or permissions will not go beyond. This is the direction of Honorable Chief Minister. जी. Will not go beyond 4 levels. So the document elimination, then document, then number of steps. So इससे time कम हो जाएगा पूरा. And automatically that time will come. So the time reduction is scientific. बिल्कुल. Not randomly. Yes, this permission was given in 30 days, now will given in 7 days. We just say it and we will not be able to do it. So if we do it scientifically, बिल्कुल, तो and we do the government process re-engineering, बिल्कुल. then this will help us. So for all the services required by industry, we are doing the government process re-engineering, and the final touch or final push will be the online digitization of everything. Yeah. So once you fill your application, the data is with us. Next time you just have to put your number and everything is done. You will get the online application and you don't have to go and collect the papers. Right. Most of the papers submitted by you previously will not be required again. Oh. So these kind of changes we are making. So re-approvals वगैरह भी फिर आसानी से हो जाएंगे. Yes, and we are going for auto approval also. जी.
by self declaration, you go and put up details, put up a self declaration. We are compliant with this, हाँ. and you will get the auto approval. Okay. So all these implemented, many of these things have already been done. Right. Some of them are in process, and some will be done in the future. In the future. So you will see the whole, uh, the, I would say the detail, what kind of initiatives and what kind of steps has been taken by the government so far, and we are continuously trying to create awareness within the industry also. We are writing with the industry associations, industry stakeholders, investors about these things, but this is taking a little bit time to percolate down, and slowly it will be done, because once we are ready fully with online, we will be shutting down all the alternative source or methods of application and approvals. Right. फिर कंफ्यूजन नहीं हुआ कि ऐसे करें ये करें. हाँ, बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट है एंड इट्स ऑल री इंजीनियर्ड. हाँ जी. बिजनेस के लिए एक ही जगह सारे अप्रूवल्स रहेंगे, दैट इज मैत्री पे. हाँ. सारे ऑनलाइन रहेंगे. हाँ. फुली इंटीग्रेट रहेगा. सबका टाइम फ्रेम निश्चित रहेगा. नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टेप्स, चेकलिस्ट. यस. For the government also, government officials also, we are preparing the standard checklist. कि these are the 10 points you have to check. तो SOP है पूरा. SOP है. हाँ. तो उसमें ये नहीं है कि मैं इनकी एप्लीकेशन में 5 चेक कर रहा हूँ, आपकी में 10 कर रहा हूँ, और ये एम्प्लॉय 4 कर रहा है, दूसरा 10 कर रहा है. So this confusion will also. This also adds to the predictability. कि भाई अगर आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से, तो आपको अप्रूवल के मिल जाना चाहिए. हाँ. And this will make them also the ready. इन्वेस्टर को भी पता है कि चेकलिस्ट ये देखी जाने वाली है. If I am ready with this, I will get the approval within that time. बिल्कुल. जैसे मेरे को याद है कि जब कॉलेज में एडमिशन के लिए गए थे तो एक चेकलिस्ट मिलती थी कि आपको ये 10th के मार्कशीट लानी है, ये लानी है, एंड इफ ऑल ऑफ दैट इज यू आर नोन कि भाई आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है. गए, दिखाया, एंड देन कंप्लीट. You do the same thing for passport, वीजा सबके लिए उनका चेकलिस्ट है. बिल्कुल. नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप भरते हैं, 7 दिन 15 दिन में आता है. Same will happen here. So human intervention, we are minimizing the human intervention. This is our main object. I think वही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जितना मिनिमाइज होता है, देन करप्शन के चांसेस आल्सो रिड्यूस हो जाते हैं, आपके अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी कम हो जाती है. हाँ. ह्यूमन इंटरवेंशन, डिस्क्रिशन. Yes. So once everything is standard, the discretion will come down. The discretion comes down, then the issues will be very less. बिल्कुल, definitely. Very less. आपने एक चीज़ बोला था अबाउट ग्रीवेंस रिड्रेसल, एंड आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने एक ग्लिम्स दिया था, बट पूरे जब हम देखें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, आपके इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो व्हाट इज द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन प्लेस? सो करेंटली देयर आर 2-3 mechanisms. They can directly approach the department, including MIDC or anywhere. But slowly, we have already developed a portal, which is Maitri again. There is a grievance redressal mechanism. Okay. Again, we'll be focusing or through that, strengthening that only. So even now also, any investor can go and give their grievance here. Okay. This will be immediately transferred to the concerned authorities. Their response will be taken within a given time frame and will be communicated to the investor. If he or she is not satisfied, if they are not satisfied, they can raise the query, and then there will be joint meeting between the investor and the authorities, and the final decision will be taken. Okay. So this is a kind of mechanism we already have. We are continuously strengthening and creating awareness amongst the investors to use this facility as much as possible. Otherwise, they can approach directly industry association, MIDC or any concerned department authority. But I would say you should go and use only single window system. You don't have to take trouble to go anywhere else. Understood. Other than this, there are certain issues which are to be dealt by the district administration. Okay. So we are strengthening the district administration. We are creating a mechanism where the district administration will actively engage with the investor, engage with the industry association, and will understand their issues on regular basis and will resolve at the district level. So this will also be taken seriously by this has already been taken seriously by us, and mostly आने वाले टाइम में ये एक परमानेंट फीचर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगा. So district level, state level, we are
committed towards Committed to resolving the the problems. problems. अभी आपने मेंशन किया कि MSMEs इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट स्टोरी है. सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग 2025 में आई थिंक बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था टू महाराष्ट्र इन द नेशनल MSME इम्पैक्ट अवार्ड्स. So, thank you so much for the mentioning that. But Maharashtra is the largest MSME ecosystem in the country. हमारे पास अभी अगर आप दोनों पोर्टल देखेंगे, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड पोर्टल्स, रजिस्टर्ड MSME की मैं बात कर रहा हूँ, तो उद्यम पोर्टल एंड IM पोर्टल, उस पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा MSMEs रजिस्टर्ड है. और MSME के इकोसिस्टम के लिए महाराष्ट्र MSME ग्रो करता है एंकर इंडस्ट्रीज के साथ. तो वो एंकर इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस महाराष्ट्र में वाइडली सभी जगह. व्हाट इज द एंकर इंडस्ट्री, क्या होता है? एंकर इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री जिसको लगने वाले जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है. तो लाइक जैसे आप महिंद्रा का एग्जांपल लेंगे या टाटा मोटर्स का लेंगे, तो टाटा मोटर्स या टाटा जो कार बनाते हैं, उस कार में लगने वाले जो कंपोनेंट हैं, वो टायर हों, नट बोल्ट्स हों, इक्विपमेंट्स हों, ये अलग अलग छोटे छोटे कंपनीज बनाते हैं. तो वो इकोसिस्टम तैयार होता है. तो एंकर एंड वेंडर इकोसिस्टम तैयार होता है. बट आई वाज टॉकिंग टू अबाउट MSME. तो MSME में आप सर्विस बेस्ड MSMEs हैं, हमारे कमर्शियल बिजनेस बेस्ड MSMEs हैं, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग के MSMEs हैं. इस MSME इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहां हम नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करते हैं. क्लस्टर डेवलपमेंट, जहां एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एक तरह के प्रोडक्ट में काम करने वाले, जो कि कुछ कुछ सेक्टोरल स्कीम से मिलता जुलता है, उनके लिए हम कॉमन फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और ये कॉमन फैसिलिटी सर्विस अब लगभग 30 करोड़ का, ऐसे 30-40 लोगों के ग्रुप के लिए 10 से 30 करोड़ की फैसिलिटी होती है, जो कि सब्सिडाइज कॉस्ट पर अप टू 80% कॉस्ट सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, ये उनको हम प्रोवाइड करते हैं. उनको लगने वाला क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 75% कॉस्ट पे हम इंफ्रा करके दे रहे हैं. इसी तरह से हमने कुछ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए हैं, जहाँ पे ये MSMEs के लिए पूरा इकोसिस्टम दिया है सब्सिडाइज रेट्स पे. MSME को 3 प्रॉब्लम्स आते हैं जी, बताइए. या 3 या 4 मेजर इश्यूज हैं. एक्सेस टू मार्केट, राइट, तो उनके लिए मार्केट कैसे तैयार हो. एक्सेस टू फाइनेंस, उनको जो बिजनेस के लिए बहुत बार वर्किंग कैपिटल के इशू आते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं. एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत बार MSMEs पुरानी जो बिजनेस बनाया है उसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. टाइम के साथ बदलना, बट टेक्नोलॉजी रिक्वायर ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच दे कांट अफोर्ड. तो हम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड करें. एंड देन एक्सेस टू वर्कफोर्स ऑल्सो, एंड देन एक्सेस टू रिसोर्सेज. करेक्ट. तो ये सारे एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट उनको कंटिन्यूस अलग अलग स्कीम के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है. एंड MSME, वी फील कि MSME इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी. इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट सबमिट का इनिशिएटिव भी MSME को ध्यान में रख के. वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट वेरियस इंटरवेंशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या हैं, पोर्टल कौन सा है. Can you zoom out a little and tell us about the policy landscape of industries? कि what is the vision of Maharashtra at the policy level? मैंने मेरे पहले भी स्टेटमेंट में बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी और इन सब के साथ साथ पॉलिसी हैज़ बीन द की फैक्टर. या और द लीडर्स हैज़ बीन वेरी विजनरी वाइल डिसाइडिंग कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे ले जाना है. अगर मैं आपको पिछले 2 या 3 साल का अगर मैं आपको बताऊं, तो सारे इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ आइदर रिलीज़ हो चुके हैं या इन प्रोसेस ऑफ रिलीज़ हैं. आने वाले 2 या 3 महीनों में वो रिलीज़ होंगे. जिसमें महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जेनरिक पॉलिसी की बात नहीं करते हैं. जेनरिक पॉलिसी के साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड होलिस्टिक इकोसिस्टम वी आर वर्किंग. राइट. So we have released, the government has released mother policy, which is industrial policy. Right. One additional chapter, dedicated chapter added for the service industry in this policy. Okay. This is the first time we have added this. Second, we have released multiple policies related to service sectors like IT and ITS. Yes. Then AI policy. Correct. Then GCC policy.
then AVGC policy, Right. and some policies are upcoming in the service sector. Yeah. In manufacturing or other sector, we have gems and jewelry policy, MSME policy, electronics policy, textile policy, food and agro policy. Manufacturing and service, there are certain policies doesn't fall in one particular category. So export policy and logistic policy, these are the complementary policy already been released by the government. And there are certain policy which are the need of the hour, Right. like circular economy policy. Right. So while doing the manufacturing and or to produce anything as per the global standard, we are in process of drafting and will circular be economy issuing the policy. circular economy policy. Other than there are circular economy policy, there are certain policies which were released few years ago, need to be revised. Right. उसमें MSME policy है, डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, तो ये सारे पॉलिसी का अंडर रिवीजन है. Right. तो ऐसे ऑलमोस्ट 25 पॉलिसीज इंक्लूडिंग थ्रस्ट सेक्टर पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, सो वी हैव एवरीथिंग. तो उस पर्टिकुलर सेक्टर और इकोसिस्टम को ध्यान में रख के उसको क्या लगेगा. जी. वी डोंट ट्रीट एवरीवन सेम कि नहीं अब तुम्हारे लिए भी सबके लिए एक ही सॉल्यूशन नहीं है. नहीं है. Right. हर एक सेक्टर के लिए अलग कस्टमाइज सॉल्यूशंस हैं, कस्टमाइज पैकेजेस हैं, कस्टमाइज सपोर्ट मैकेनिज्म है. Right. I think काफ़ी elaborate effort जाता है in kind of drafting all these policies, thinking थोड़ा futuristic also, right, so that we are prepared for what is to come. जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, तो इसमें द पॉलिसी इज अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स. Of course. So it requires a vision of the leader. Yeah. It requires a feedback and expectations matching of the stakeholders. Stakeholders means the investors. It requires consultation from industry, academia and the government. Right. It requires an internal assessment how much we can afford Correct. to support the Yeah, industry. yeah. So this is a mix of multiple things, and the policy is a very long-term task. Of course. It doesn't come in a week's time, month's time. It takes at least 3 to 6 months time to take final shape. Yeah. After so many consultation and the discussion. And we are fortunate because as a government we have released many policies in last 2-3 years, and some of them will be and these policy will guide the future of state industrial growth. Right. Right. It's when we talk about investments, right? We've discussed about investment attract कैसे करते हैं. We talked about facilitation of investments also. Both the aspects are very very critical. One aspect I think which has been in news quite a lot is the World Economic Forum का Davos Summit. Yes. Right, and वो हर साल होती है आपके I think start of the year के करीब it is conducted. And so पहले मैं समझना चाहूँगा कि the perception generally is that Davos Summit is where all business leaders come and meet and काफ़ी वहाँ पे आपके investors भी आके मिलते हैं. What is the need for Maharashtra, which is basically जहाँ पे इंडिया का बेस भी बहुत सारा है इन्वेस्टमेंट का. आपने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो देयर इन इंडिया. क्यों जाना पड़ता है स्टेट लाइक महाराष्ट्र को टू Davos Summit? So basic thought behind in this is this branding about Maharashtra. Right. So let me tell you, we are not competing with anyone else. Acha. We are competing either with ourselves or with the global leaders. Understood. Okay. So if we want to compete with the global leaders, we should know what is happening at the global level. And we should tell where is Maharashtra. Yeah. I'll give you one picture, the number. So if you place Maharashtra's economy in the global economy map, we will be somewhere around 25. Wow. We will be at par of Singapore, UAE and Sweden and something like this. Yeah. So that we need to tell. Correct. We need to tell everyone that this is the ecosystem Maharashtra has. As I told you, we have 300 industrial townships, we have policy ecosystem, we have best to best infrastructure facility. So we go and tell them. Suppose a semiconductor company is planning to set up their manufacturing unit in somewhere. If they want to set up in US and UK, they will see some different location. But if they want to
go and set up their factory in Asia, Yeah. who will tell them go in Maharashtra? Yeah. So we are there. And this is not only limited to the investment. We go and see what is happening at the global level. What is the future of the business? What is the future of industry? Correct. What global leaders are thinking? And in that room, Maharashtra is there to contribute. Yeah. So this is a thought process behind. We are not just going and running behind everyone come Yeah. for industry. Yeah. There has been a round table conference of global CEO of global companies. Okay. Which bringing 30 CEOs at one table is a task. Exactly. Definitely. And bringing them at one table is a difficult job. And that is happening because everyone is coming there and we are getting that opportunity to tap in them, to connect with them. And that is converting into investments. Yes. So investment in Maharashtra is an outcome of this. Outcome of it. Yeah. Yeah. Okay. Of course. The main objective is branding Maharashtra. Understood. So what is that pitch? Like, what are the things that we typically tell to the global investors that come to Maharashtra because X, Y, Z? What is that X, Y, Z? So as I told you, we are the at par with the global economies. Right. We have best of the infrastructure in terms of, you say, the road, the port, the city infrastructure, city life, and the skilled workforce also. Yeah. This is one of the important factor. I'll give you one more number, that is FDI. So if you see the number of FDI coming to India, on average, 1/3 is coming to Maharashtra. On an average. Continuous for last 30 years. In last 2-3 years, it is 40%. Wow. So then the number speaks. We don't say much. We just tell them the numbers. These are the numbers for Maharashtra, and then rest everything they understand. So ecosystem. We also tell them about what initiative we are doing in terms of ease of doing business. Yes. We give them a commitment about the land and infrastructure availability. We give them a comfort where they are assured about the predictability, certainty about their business in Maharashtra. Maharashtra is again a very big market for the global products also. Correct. So the skilled workforce, the land, infrastructure, branding, overall ecosystem, everything we go and tell. Yeah. And this is what is required for any industry. Definitely, I think, and वही है कि we have to increase the size of the pie. Yes. And that's why global investment is very, very important for the overall development of Maharashtra and then of course in turn India. Yes, correct. One of the things is that I was just looking at the numbers. तो 2025 में लगभग आपके 50 के ऊपर MOU साइन हुए थे डावोस में. 2026 में लगभग 20 के करीब हुए थे आपके MOU साइन, and the quantum of amount which was committed somewhere around 15 lakh crores, right? And उससे एक्सपेक्टेड भी ये है कि बहुत ज़्यादा लाइक 15 से 20 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे. दीज वर सम ऑफ द नंबर्स दैट आई वाज लुकिंग ऑनलाइन. सो MOU साइन हो जाना एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का कमिटमेंट पाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपने बताया कि देयर इज अ पिच दैट वी हैव, नंबर्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट देन सीइंग इट थ्रू इज द अदर पार्ट ऑफ इट. एंड देयर इज टिपिकली अ लॉट ऑफ वो कि MOU तो इज जस्ट फॉर लाइक ये सब तो बस चेस्ट थंपिंग है और बताने के लिए कि नंबर्स हैं बड़े बड़े, बट असली में ग्राउंड में चीजें हो रही कि नहीं हो रही ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा. हाउ वुड यू से दैट महाराष्ट्र टेक्स केयर ऑफ दैट? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोगों से पूछा जाता है. बट इसका बहुत सिंपल जवाब है कि हम वहाँ जो MOUs करते हैं, दीज आर नॉट रैंडम MOUs. फर्स्ट थिंग, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड ऑफ ए MOU करने के पीछे. वी डू सेक्टोरल एनालिसिस. We do identify the potential investors. We do match with our capacity and strength or our hunger of that particular sector. And then after a 3-4 round of multiple level discussions, this goes into the final MOU signing and we sign those MOU. And then this investment journey starts. So in most of the MOU you have seen in a WEF are very large size, big size MOUs. Most of them are beyond 10,000
crore rupees Yeah, investment. yeah. Most of them are having FDI component. Most right. of them is almost Yes, every yes. MOU is having FDI component. There is a possibility of Indian partner or Indian um, stakeholder in that Yeah. MOU. But MOU, after the MOU, investment journey start, and this journey is of 5 to 10 years. Okay. Because investment doesn't happen in 6 months or 1 year. टाइम लगेगा उसमें काफ़ी. आप सोचिए कि आपको सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगानी है. हाँ. It takes minimum 3 years. This is a global standard. The fastest factory comes in 3 years. 3 years, right. तो उसके लिए लैंड, हाँ. उसके लिए इंफ्रा, करेक्ट. उसका फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल, दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो अगर हमने 10,000 करोड़ का MOU किया है, तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको नहीं बता सकता 10,000 करोड़ के MOU में से कहाँ है 10,000 करोड़, कहाँ है वो 10,000 जॉब. या पहले साल उसमें से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरे साल 2,500 होगा, तीसरे साल 5,000 होगा, चौथे साल हो सकता है 10,000 करोड़. राइट. एंड इसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट विल कम once the production starts. Of course, so it's And gonna be some employment will be the during construction. yeah. तो ये जो सवाल है ना कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यू विल सी आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years and 10 years. You will see definitely results. अगर हम इस बात से डर के कि लोग आज रिजल्ट पूछ रहे हैं और आज हमारे पास उनको दिखाने के लिए उतना नहीं है, तो हम डर के बैठ जाएं और MOU करना और इन्वेस्टमेंट लाना बंद कर दें, तो फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी, हम आज जो फर्स्ट नंबर पे हैं, पीछे चले जाएंगे. करेक्ट. करेक्ट. तो हम ये देखते हैं कि जो MOU हमने साइन किए हैं उसमें से कितने को लैंड मिला है, किसने अप्रूवल्स के लिए अप्लाई किया है, किसका ऑन ग्राउंड काम शुरू हुआ है, किसका मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट होगा, व्हाट आर द टाइमलाइन. एंड वी हैव appointed dedicated resources to track and facilitate these investors to make their investment journey very smooth. Wow. But there are certain cases, in 1 or 2 cases, one or other investors backed out for multiple reasons. This is an intent they have shown. Correct. Okay. There is a 1 or 2 cases where the suitability of the location of the land or for any reason the investment doesn't happen. But 75%, 80% is our conversion ratio. Wow. Conversion ratio. 80%. And you will see all these investments are happening in Maharashtra. We are continuously monitoring, not only we, as a mechanism from top to bottom. Honorable Chief Minister is taking regular feedback and review and ensuring that each and investors get the necessary support. Right. Our Minister of Industry take necessary interventions and ensures that this is happening timely. Our Secretary, Honorable Chief Secretary is taking a review what is happening to WAF MOUs or any other MOU we do sign. And then is our Principal Secretary Industries ensures that whatever is required, the permission, the incentive package is given by the concerned department. Right. There is a mechanism, there is an institutional setup. Like I mentioned earlier, MIDC ensures the infrastructure and then Maitri ensures the timely approvals. Correct. The Secretary Office ensures their incentive package as per their wish. And this is all happening parallelly and smoothly. Results, it's not a one exam and we can give you the score sheet on day one. But definitely you will see the results. All of these are happening and this we will be proud to tell you each and every MOU has been implemented, each and every investment has been commenced in Maharashtra over the period of next 8 to 5 years. I think अगर 80% भी जा रहे हैं तो that's a sizable amount and that also shows कि accountability है of seeing it through. And obviously थोड़ा सा patience and थोड़े time के बाद results on the ground will also start to show. Yes, definitely, because investment period, time लगता है. बड़ा investment takes 5 years, 10 years, 7 years, and this is not new. Yeah. हमारे यहाँ MSME के लिए investment window period window is 3 years, 3 years to 5 years. Right. फिर उसके बाद large के लिए 5 to 7 years, mega के लिए 7 to 10 years. Yeah. तो that is in our policy also. Correct.
And suppose if I ask you a question, you want to start a business, XYZ, anything. How much time will you commit today, and how much time it will take to start that? You'll prepare DPR, you'll take the premises, you'll the some furnishing or furnishing, whatever is required. You'll take equipments, you'll hire people. This will take some time. Yep, बिल्कुल. Even for a small, to start a small office, it takes 3 to 6 months. Correct. These are big investment, and most of them are manufacturing. Yeah. They are going to take time. Yes, you need time. Yeah. सर आपने बताया कि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट बार आ जाता है उसको टाइम लगेगा टू काइंड ऑफ शो रिजल्ट्स फॉर अस, बट द वर्ल्ड इज ऑल्सो मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट? टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एडवांसिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. AI भी कुछ साल पहले आया था. नाउ वी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि अब AI में और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आएंगी. डेटा सेंटर्स वगैरह जो हैं वो और कंट्रीज हैव कैप्चर्ड द अपॉर्चुनिटी क्वाइट वेल. सो विद दिस जो टाइम लगता है, हाउ डू वी प्लान कि नेक्स्ट बिग थिंग को हम प्रिडिक्ट कर लें, and then we start investing and starting attracting the investors for those things also? Yeah, this is again very interesting question, because what is happening if we miss this opportunity of next big thing, then we will be continuously followers. Right. If you want to be leader, you have to catch right technology, right thing at the right time. बिल्कुल. So that is our approach and attitude. And innovation and startup and this thing has, especially the technology provides you that platform of levelers. कि आज आप यहाँ हैं, but one technology will take you here and then you will be at par at the global level. So we are focusing on all those policies, including AI, including quantum computing, including data centers, especially in AI, sovereign AI, and everything we are working. If I have to tell you about the data center story, so Maharashtra holds approximately 60% of the current data center capacity of the country. Out of the total of the 50% of the total country data center capacity is in Mumbai. And this is approximately current in Maharashtra in 1 gigabyte. Right. But in next 5 years, we are multiplying this capacity by 5x. Okay. By 2030, we will be having approximately 5 gigawatt data center capacity in Mumbai. And this is not just discussion, this is just not just MOU. This is actually happening in Mumbai. In Mumbai, right. In our WEF MOU also, there are 10-12 companies, they have shown interest. We have signed MOUs for the hyperscaler investment in Maharashtra, in Mumbai. Right. I can assure you, each and every big data center company either is in Mumbai or will be in Mumbai by 2030. So with data centers, we are in search of land, and we are coordinating with them. We'll be providing necessary infrastructure, because this requires water, this requires electricity. This will open a new sector for economic growth in Maharashtra. Correct. If we create 5 gigawatt by 2030, then this will provide a new platform for the technology, and especially in Maharashtra. Maharashtra is having a very good technologically sound workforce like Bangalore and Hyderabad also. Correct. Mumbai and Pune, both the cities are emerging very good. This, you see this corridor from Airoli, Thane to Belapur is emerging as a new IT hub of the country. Yeah. And again, Pune also, this Pimpri Chinchwad, Anjewadi and this southern Pune area, after the ring road and airport of Pune and Navi Mumbai airport, this whole belt from Mumbai to Pune will be known as IT and GCC. Pune is now the GCC hub of the country. Correct. Pune has emerged the second in GCC after Bangalore. Okay. As a state, we are leading. Right. So this is everything. So we have got, we have released
policies for AVGC. This is an upcoming and sunrising sector. We have identified sunrising sectors. So for sunrise, we have identified some sunrise sectors. We have released policies for some, and we are in process of defining the policies which will enable investors to come and invest in Maharashtra. Right. And we are creating an ecosystem where these innovators and especially the investors in new technology will get an edge being in Maharashtra. Right. So, like quantum computing, we have signed an MOU with a company. We'll be having something very big in quantum computing in next few months only. Wow. Okay. So we are working on those front. So we will be the leader, not the follower. Not the follower. I think that is quite reassuring. I would say that that इस टाइप से प्रेडिक्ट करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि फॉलो नहीं करें एंड हम लोग उसमें लीडर बने. तो उसमें यही है कि सिर्फ ये डिस्कशन नहीं है. हाँ. उसमें पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं. करेक्ट. उसमें अलग अलग सेक्टर्स में स्पेशली जैसे मैंने बोला सनराइज सेक्टर, उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं. बिल्कुल. वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टार्टअप्स को कनेक्ट कर रहे हैं. इन्वेस्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम दे रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में आज इन्वेस्ट करें. हाँ. उसको हम एडिशनल इंसेंटिव दे रहे हैं, एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं. नॉट बिकॉज कि हम उस पर्टिकुलर कंपनी पे फोकस कर रहे हैं. दैट कंपनी विल बिकम जस्ट इन ए प्लेटफॉर्म और द जहाँ से बाकी लोग उसको उसके साथ आगे बढ़े. एंड दैट सेक्टर विल ग्रो इन महाराष्ट्र. वी सी अ लॉट ऑफ potential in quantum computing, AI, data centers, robotics, drone and everything. We are working on those sectors. I think talking about innovation and deep technology, because that's the buzzword. आपका एक I think कुछ साल पहले टेन्योर रहा था as a CEO of the Maharashtra Innovation Society, the Maharashtra State Innovation Society. So एक तो पहले बता सकते हैं कि what is that society all about? Why is there a dedicated society for innovation? What does it do? And what are some of the major interventions that it is responsible for? So, I'll connect this with the previous question. As you asked, what is the big thing we are going to take? So, the decision to establish Maharashtra State Innovation Society is linked with that. Right, of course. Vision and thought process. Bilkul. The society was established somewhere in 2016, and after that it has taken up. The main objective was to create an ecosystem. There has to be a nodal agency which will provide support to the startup and innovators, which will create an conducive ecosystem for startup to grow, which will create facility for mentorship, which will create facility for incubation, which will create facility for design thinking and everything, which will also facilitate them in market and technology access. And this has to be provided at some affordable prices. Right. Maharashtra is known as the capital of startup. Yeah. Why so? Because 30,000 plus DPIIT recognized startup is in Maharashtra. Right. Registered startup. More than 10,000 DPIIT recognized startup in Maharashtra. Mumbai and Pune have jointly, I think, given more than 30 unicorns in a startup ecosystem. Correct. We have a dedicated startup policy. We have more than 500 incubation centers to support this startup. Yeah. We don't stop here. We, as a government, are committed to provide an affordable facility to the startup. So what we have done, हम अभी 200 incubation center का decentralized way में एक network additional लेके आने वाले. Okay. And this will be spread over 15 lakh square feet area. Wow. Constructed. Okay. Ready to use. Ready to use पूरा. आज की डेट में उसमें से 7 लाख स्क्वायर के फीट के आसपास पूरे महाराष्ट्र में तैयार है. 92 सेंटर्स अगले 1 साल में आपको शुरू मिलेंगे. 1 या 1.5 साल के अंदर शुरू हो जाएंगे. इसमें आपके पास मेंटरशिप, डिज़ाइन स्टूडियोज, प्रोटोटाइपिंग स्टूडियोज, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ अलग अलग सेक्टर के हिसाब से आपको इसमें मिल जाएंगी. एंड ये फैसिलिटीज़ सभी स्टार्टअप को 75% पे डिस्काउंट पे मिले. अच्छा.
So suppose the rent of a co-work, even including co-working space, Right. Okay. co-working desk also. So suppose a co-working desk monthly rent is 10,000 rupees. The startup will get it only 2,500 rupees. Oh. So this is a kind of desk. So this will be much cheaper than anywhere in the country. Wow. And the 2,500 is maximum. Correct. I'm saying from the discount point, Huh, 75%. Of course. So this is a kind of discount we will be offering through the network of these upcoming incubation facility. And 200 incubation centers is a very big number in Yeah. next 2-3 years. Yeah. And this all will be guided by one body which is called M-Hub. Correct. This is the M-Hub is under progress, and Yeah. next 2 years we'll be seeing this M-Hub fully functional. And when I was reading about M-Hub, I think it also stated that deep technology पे भी focus काफी रहेगा उसका, because that's Yes. a big thing now. So we are continuously supporting deep technology startups and everything, where we have also created a policy for deep tech. We have created a fund for deep tech startup, because Okay. this is a technology and where the startup struggles with the initial level funding and the support from the Yeah. government. Yeah. So we have created a fund. We are investing in early age startup, and we are giving them early support at the earliest, because many times these startups, social sector Yeah. startup and deep tech startup doesn't get initial funding. Once they reach to one level, then they get the support. Right. तो वो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम भी हम हमारे डीप टेक फंड से कर रहे हैं. अच्छा. Got it. So now coming back to the society itself, आपने बताया कि ये सारा चीज़ों में that's the nodal agency which does it. तो what are the मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं? Is it events होते हैं? Is it policy level पे काम होता है? What are the things that the society actually is Yes, तो responsible for? सोसाइटी पॉलिसी बनाती है. स्टार्टअप इनोवेशन सोसाइटी इनोवेशन पॉलिसी प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है. सोसाइटी कोऑर्डिनेट विद द स्टार्टअप. दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द स्टार्टअप वीक. They also organize the grand challenge. So there are two basic difference between these two things. The grand challenge is about the first identifying a solution, a problem, identifying a problem, throwing it to the market or to the startup, and then getting the solution. Startup week is different. Startups are having the solutions. We are examining and reviewing them and evaluating them, and then we are taking those solutions for the government. So there is approach different. These two things we do, and we do participate in many more startup events. We are supporting universities. We are supporting colleges, so that these colleges and universities can create a startup ecosystem within the districts, even for the tier 2 and tier 3 cities also. So we startup week and grand challenge provides opportunity to the startup to work with the government. Okay. And this is a very unique feature. तो 2021-22 में आई थिंक फॉर दिस अवार्ड भी मिला था, द राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, राइट? सो वो बता सकते हैं कि व्हाई वाज किस पर्टिकुलर इंटरवेंशन के लिए वो अवार्ड स्पेसिफिकली मिला था? I think that was given for overall performance of the State Innovation Society. But in national ranking also we have moved forward from because we started it late, but we have picked up very fast. Right. And now we are in top achiever category of the Government of India ranking. Right. इसमें 3 या 4 चीज़ें जो इनोवेशन सोसाइटी करती है, और वो यही है कि स्टार्टअप्स को एक एक्सेस टू मार्केट प्रोवाइड कराना, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, एक्सेस टू फंड प्रोवाइड कराना, और एक्सेस टू वर्कफोर्स प्रोवाइड कराना. राइट. ये 4 क्रूशियल पॉइंट हैं जिस पे स्टार्टअप स्ट्रगल करते हैं, और उसको प्रोवाइड कराने के तरीके अलग अलग हैं. जैसे एक्सेस टू मार्केट प्रोवाइड कराना, तो एक्सेस टू मार्केट में गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट बायर. करेक्ट. But many times they don't get these opportunities to work with the government directly, because government has a defined procurement policy. Yes. But Maharashtra has been very progressive, and they made provision in 2016 policy only how the startup can participate in this procurement process and what are the exemptions for them. Right. तो महाराष्ट्र में उनको experience which is one of the major road block, उससे उनको exemption है. अच्छा. और EMD का exemption है. And if they match the price, they can get the
split work order also. Okay. So there are certain benefits. We are in process of revision of the procurement policy, and we are considering some more factors for the startup, so they can connect more closely with the government. Second, जैसे मैंने बताया कि government is the largest buyer और and difficult to government Yeah. के साथ directly ऐसे engage होना without following the procurement process. तो startup week was a process which we designed, जिसमें कि सारे देश के स्टार्टअप पार्टिसिपेट करते हैं. फर्स्ट लेवल स्क्रूटनी, सेकंड लेवल स्क्रूटनी, थर्ड लेवल स्क्रूटनी के बाद वो 6 सेक्टर्स में टॉप 3 स्टार्टअप आइडेंटिफाई होते हैं और फिर उसमें से टॉप स्टार्टअप को सिलेक्शन के. देयर इज अ डिफाइंड प्रोसेस आल्सो. एंड इस जूरी में एकेडमिशियंस है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट है एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट, दे डू सिलेक्ट कि ये फाइनल स्टार्ट. फिर उस स्टार्टअप को उसके सॉल्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मैच किया जाता है एंड देन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट दैट स्टार्टअप इन द गवर्नमेंट इकोसिस्टम विदाउट द टेंडरिंग प्रोसेस. अच्छा, without a tendering process. Yes, because the award money is given by Innovation Society is the work order, against the work order. Okay. Understood. So award money is given against the implementation of the work order. Right. And this helped many startups to showcase their product or demonstrate their product or solution within the government and validated by the government, and that has given them multiple opportunities. The startup has got multiple business with global and they got fund and everything. Got it. Second approach is about grand challenge. गवर्नमेंट के पास बहुत सारे challenges आते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में. Then we define our problem statement, we call for solutions through the startup, evaluate, and the best suitable solution is being implemented. So we are working with both the approaches. Okay. Ready solution implemented in the government, we are giving the problem statement and getting the solutions. Very nice. In the government. And this changed the total approach of the government machinery Towards innovation. And makes it more flexible and creative also. Right. And the final result or outcome or objective of this is to be more efficient and transparent providing the services. Correct. Yes. I think quite interesting कि because ये दो different approaches से trying to solve a major problem of kind of startups को market access provide करना, उनको conducive environment provide करना. I think quite interesting. सब बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई थिंक बहुत सारे पहलू हम लोग ने डिस्कस किए अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट डावोस, अबाउट इनोवेशन. Would now want to know you a little bit more personally as well, right? So viewers would get to connect with you at a personal level. मेरा पहला question to you is there any personality or book or quote that resonates with you the most, or any philosophy that resonates with you the most? I would say that there are many people who has influenced me throughout the life. Yeah. But there are two great personalities has influenced me to a very big extent. One is our ex-president and Dr. APJ Abdul Kalam, and second one is the Swami Vivekananda. And there are many reasons, and why I admire them, why I follow them, what has changed in me because of them, reading about them and everything. Quite profound. What are your hobbies outside, or what do you do outside work? Generally, I like to spend time with family and friends. Right. And going out, being home. That doesn't make a difference, but being definitely with the friends and family is the most my comfort zone. Comfort zone. And I like that. Yes. Right. Do you have any advice for the youth of today that that you would like to impart to them? Very simple. I think stay focused and grounded, and you will see nothing is impossible. I think very short and very profound. I would say. Because this is the key of every success. Yeah. Stay focused. Because कोई भी result overnight नहीं आता. You have to give something
this is whatever you are doing today is a kind like sowing a Yeah. seed, and this will slowly grow and will become a tree. Yeah. And it happens to our life also. So don't try shortcuts. Stay focused, and you will get what you want. Yeah. आपका जो रोल है बहुत ही डायनेमिक है एंड काफ़ी लॉन्ग आवर्स आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड हाउ डू यू मैनेज वर्किंग जगलिंग बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर एज वेल एज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम? So there are two aspects, one within the work and one beyond work. Yes. So work-life balance is a very difficult, I think most challenging for me. I tried my most of the time, when I'm in office, I prioritize the day, what is to be done today. I decide my day chart. But many times it happens you don't go by that because of multiple reasons. I decide the priorities. I do follow up, continuous follow up. I do assign tasks. I do believe in delegation, and I do believe in especially participation from the team. Right. So whatever happens is because of team. Yeah. And something is not happening because of me. Okay. So this is the philosophy I do follow. Right. So and outside office I try to be, my family will not agree because I'm trying, they will not agree to this statement that I do maintain a work-life balance, but I try. So as we come to the last part of the podcast, we have a short rapid fire round. So I have set of 5 questions. जो आपको पहले immediately आंसर आएगा वो प्लीज़ बताइएगा. पहला क्वेश्चन है, आर यू मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? I think none of them. But I am very flexible. ओके, राइट, ओके. अगर आपके लाइफ को, आपके वर्क डे को एक बैकग्राउंड म्यूजिक देना होता है, एक सॉन्ग देना होता है एज अ बैकग्राउंड, व्हाट वुड दैट बी? So one line, रुक जाना नहीं तो कभी हार के. अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस. Why that specific song? Because there will be challenges in your life, there will be hurdles, and you will feel कि नहीं अभी इससे आगे possible नहीं है. And once you decide कि possible नहीं है तो वहाँ chapter close होता है. जी. So don't stop. Continue as I mentioned earlier also. Right. Stay focused and nothing is impossible. Yeah. Yes. What is your favorite vacation destination? I think Kashmir. Kashmir. Yeah, I love that. You've been there? Yes, many times. Many times. I spent almost one month last year. अच्छा. 1 month. And out of that, 25 days officially. Got it. One habit that your family finds funny or very amusing that you have picked up from your time at services? That is work only. That is work only. Because they say, if I am free on Saturday or Sunday, I'll get irritated because I have no work. I think that is why we are recording a podcast today on a Saturday. That's why I'm here on Saturday also. Yes. And the last question is, what is your favorite movie of all time? And I like to watch comedy movies, but Three Idiots one of the Three favorite. Idiots. Yes. Thank you so much, sir, for your time. And this was lovely talking to you today, and very, very, I think, enriching conversation, I must say. Our viewers would really love to understand the story of industrialization in Maharashtra and what the vision of the government is for the future. Thank you so much, man. Even while discussing with you, I have learned a lot. And this is a continuous process and we should continue with that. Thank you. Thank you so much.